A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is microeconomics and the statistics for economics. So from the previous few classes we were continuously revise the chapters, basically these in which the student have facing the most of the problem, like to solve the numerical questions of the statistics, like the measures of the central tendency, that is mean, median and mode, measures of the dispersion, correlation, index number, right? So simultaneously we have also discussing the chapters of your microeconomics, in which we have already discussed the main market forms, in which we have discussed the perfect competition and the oligopoly, monopoly and monopolistic has been deleted from your syllabus. So you no need to study all those topics. After that we have discussed the price determination, simple applications of the tools of the demand and supply, and from the previous few class we have started the chapter of your microeconomics, that is theory of demand. Okay, so in this chapter we have already discussed what is the meaning of the want, desire and the demand, how the demand is different from the want and the desire. Okay, so desire is simply a wishful thing, that we are not able to purchase those commodity because we don't have enough money to purchase those commodity. Want is a want become desire in that condition when we are able to purchase those commodity, right? Next one is demand. So demand is the person is willing to purchase the commodity in a market when the particular price of that commodity is given at a particular period of time, right? After that we have started the we have discussed the meaning of demand and the kinds of demand. So kinds of demand is price demand, income demand and the cross demand. Okay, so some other kinds of demands are also there, like joint demand, composite demand, derived demand and the direct demand. Next topic that we have discussed, that is other things remaining constant. Okay, so when we study the relation between the one factor in relation to the demand and others factor remaining the constant. For example, if we study the relation between the price and the quantity demanded, so we have taken all others factors like income of the consumer, price of the related goods, future expectation about the price in the future, taste and preference, population. We have taken others factor remaining the constant. So we have discussed the demand is the function of price of the commodity, right? And others factor remaining constant, like dx is the function of the price of the x commodity, income of the consumer, price of the related goods, taste and preference and expectation about the price in future. So we will take all others factor remaining constant. We have studied the relation between the dx and px. Okay, so demand of the commodity, demand of any commodity is depend upon the price. So next topic that we have discussed, that is law of demand. So law of demand simply says, other things being equal, there is inverse relationship between the price of the any commodity and the quantity demanded. So when the price of the any commodity increases, quantity demanded decreases. So when the price decreases, quantity demanded increases. So there is a negative or the inverse relationship between the price and the quantity demanded, and we have taken others factor remaining the constant. Okay. Next we have discussed the explanation of the law of demand. So explanation of the law of demand is explained with the help of the two measures, like individual measure and the market measure. So individual measure is divided into two, that is individual schedule and the individual demand curve, and the market measure is divided into two, that is market schedule and the market demand curve. So we have already discussed with the help of the schedule and the diagram. Next topic that we have started, that is demand curve and its slope. Okay, so demand curve or the slope of the any curve is totally depend upon the amount of change in the variable whatever taken in the y-axis to the amount of change in the variable whatever taken to the x-axis, की y में कितना y के चेंज होने पे कितना x के वेरिएबल में चेंज हो रहा है, इसी का जो भी जितना भी चेंज हो रहा है
उसका वो क्या होता है, स्लोप ऑफ अ कर्व, कर्व का वो स्लोप बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो डिमांड कर्व में हम लोग किसका रिलेशन पढ़ रहे हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। तो हमें पता है कि वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेते हैं एंड एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं। तो वाई दैट मीन्स प्राइस में कितना चेंज होने पे जो भी हमने एक्स पे लिया है क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होता है, वही बताता है आपका स्लोप ऑफ अ कर्व। और हमें पता है कि प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड में निगेटिव रिलेशन होता है। जब भी प्राइस इंक्रीज होती है क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, जब प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। इसलिए जो भी स्लोप कर्व का जैसा भी डिमांड कर्व है वो यही बताता है, राइट। फिर इसके बाद पढ़ा हमने कि जो भी स्लोप है डिमांड कर्व, जो भी डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और डिमांड जो है वो कर्व में भी हो सकता है, कर्व्ड लाइन भी हो सकता है, जिसको हाइपरबोला बोलते हैं। तो जब भी जो भी डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन इन दैट सिचुएशन होता है जब भी जो भी चेंज हो रहा है वो सेम प्रपोर्शन में हो रहा है। निगेटिव रिलेशन तो है, निगेटिव रिलेशन है तभी तो वो जो कर्व है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्लोप हो रहा है। तो इसमें क्या है, निगेटिव और द इनवर्स रिलेशन है। और जब स्ट्रेट लाइन होगा डिमांड कर्व लाइक दिस, दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन द सेम प्रपोर्शन। प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में जो भी चेंज हो रहा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वो क्या हो रहा है, सेम प्रपोर्शन में हो रहा है। ठीक, तब क्या होगा, ये जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, डिमांड कर्व जो हम लोग बात करते हैं वो कर्व्ड और हाइपरबोला कब होगा, ऐसा वो तब होगा जब भी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में जो चेंज हो रहा है वो चेंज किस में है, वो वेरिएबल प्रोपोर्शन में। मतलब जो भी डेल्टा वाई में चेंज हुआ, प्राइस में चेंज हुआ, वो हर बार चेंज क्या है, डिफरेंट हो रहा है, वेरिएबल है। एंड और उसके अकॉर्डिंग जो आपका एक्स में चेंज हो रहा है वो भी क्या है, वेरिएबल है। मतलब यहाँ पे जब भी चेंज हो रहा था वो कांस्टेंट था। जैसे प्राइस में अगर 10 चेंज हो रहा है तो वो हर लेवल पे 10 ही चेंज होगा। क्वांटिटी डिमांडेड अगर 2 चेंज हो रहा है तो वो हर लेवल पे 2 ही चेंज होगा। तब वो होगा सेम प्रपोर्शन। तब जो भी आपका डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन में होगा। वेरिएबल प्रोपोर्शन, जब डेल्टा वाई में प्राइस में चेंज हो रहा है, एक बार प्राइस में 2 चेंज हो गया, एक में 6 चेंज हो गया, एक में 8 चेंज हो गया, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज हो गया कि एक बार जो चेंज हो रहा है, चेंज आपको पता है कि हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर 10 और 20 है तो उसका चेंज कैसे होगा, डेल्टा वाई ले लेते हैं, दैट इज 10, कि जो भी आपका प्रीवियस वन और जो प्रेजेंट वन उससे माइनस करके हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर अगर ये जो चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज, अगर एक बार 4 हो रहा है, 9 हो रहा है, 15 हो रहा है, तो अगर ये चेंज हो रहा है मतलब वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। इन दैट केस द डिमांड कर्व विल बी इन द कर्व्ड लाइन और द हाइपरबोला। Okay, so after that we have discussed the distinction between the individual demand schedule and the market demand schedule. Next topic that we have started, that is individual demand curve and the market demand curve. So till here we have already discussed in the previous classes. So in today's class we are going to study the exceptions of the law of demand. Okay, so let's get started. So the topic is एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया कि इसमें क्या करते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ लिया, बट कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं जिस केस में लॉ ऑफ डिमांड क्या है, वैलिड नहीं होता है, उसी को बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। सो जनरली लॉ ऑफ डिमांड एग्जिबिट्स निगेटिव रिलेशन। ठीक है, हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, निगेटिव रिलेशन बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। बट इन सर्टेन केसेस लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। बट कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। Here the reverse happens, यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जा रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी जो डिमांड करे वो भी डिक्रीज हो जा रही है। बट हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। बट एक्सेप्शंस है, ऐसे बहुत जगह हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस प्लेस पे
क्या होता है कि जब प्राइस इंक्रीज हो रही तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो जा रही है, जब प्राइस डिक्रीज हो रही तो क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज हो जा रही है, ठीक है। सो अ राइज इन प्राइस रिजल्ट इन मोर डिमांड, जैसे ही किसी भी कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा हो रही है तो डिमांड भी उसकी ज़्यादा हो जा रही है, एंड द वाइस वर्सा, जस्ट ऑपोजिट. So positive relation between the price and quantity demanded of a commodity. In that case क्या हो जाता है कि पॉजिटिव रिलेशन हो जाता है, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, सो द एक्सेप्शंस आर, इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं. फर्स्ट इसका एक्सेप्शन हो गया है आपका गिफन गुड्स. Giffen goods. Okay, so let's discuss. So these are highly inferior goods in case of which price effective positive. So the positive relation was first of all analyzed by the Sir Robert Giffen. That is why these are called the Giffen goods. ठीक है, ये जो positive किसी किसी केस में क्या होता है कि हम इन्फीरियर गुड्स, गिफन गुड्स में क्या है, इन्फीरियर गुड्स की बात करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं. तो ये जो पॉजिटिव रिलेशन था वो कौन बताया, ये रॉबर्ट गिफन ने बताया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, गिफन गुड्स रख दिया गया. ठीक है, फिर कह रहा है सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व दैट वेज अर्नर इन द ब्रिटिश परचेज मोर ऑफ द ब्रेड व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीज्ड. वो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी वेज अर्नर है, जिनकी वेज है, जिनको वेज मिलती है इन रिटर्न ब्रिटिश में, वो क्या करते हैं, वो ब्रेड को और परचेज करते हैं जब उसकी प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है. सो दे कट डाउन देयर एक्सपेंडिचर ऑन देयर अदर सुपीरियर गुड्स. वो क्या कर देते हैं, वो अपना जो भी एक्सपेंडिचर है सुपीरियर गुड्स पे, अच्छे गुड्स पे, उनका एक्सपेंडिचर क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं. टू मेंटेन द मिनिमम कंजप्शन लेवल दे परचेज मोर ऑफ ब्रेड. फिर उसको मेंटेन करने के लिए अपना मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर को वो क्या कर देते हैं, दे परचेज मोर ऑफ द ब्रेड. वो उस कंडीशन पे क्या करते हैं, जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है उस कंडीशन पे वो उन कमोडिटी को, उन ब्रेड को परचेज करना ज़्यादा कर देते हैं, और जो भी सुपीरियर गुड्स हैं उसको क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं. ठीक है, सो सर गिफन नेम्स हिज ऑब्जर्वेशन एज द गिफन पैराडॉक्स. उन्होंने अपने ये जो भी टर्म दिया उसको उन्होंने नेम दिया, दैट इज गिफन पैराडॉक्स. पैराडॉक्स सिंपली मीन्स द कॉन्ट्राडिक्टरी और द कॉन्फ्लिक्ट. सो एज दिस बिहेवियर वॉज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि इनका ये बिहेवियर क्या था, अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट था, इसलिए इन्होंने गिफन पैराडॉक्स नाम दिया. सो व्हाट देयर प्राइस, व्हेन देयर प्राइस फॉल्स, जब भी प्राइस फॉल होती है, परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर राइजेस. जैसे ही मैंने इसका एग्जांपल आप लोगों को दे रखा है कि जैसे ही कोई भी कमोडिटी, जैसे ही प्राइस, जो प्राइस है वो क्या करती है, फॉल करती है, परचेजिंग पावर कंज्यूमर की क्या हो जाती है, राइज कर जाती है. मैंने एग्जांपल इसका मैगी का दिया था 10 और 12 रुपीज़ का. तो जैसे ही क्या है कि जब प्राइस किसी की फॉल कर जाएगी तो आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है, परचेजिंग पावर है, वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी. आपको पहले 10 रुपीज़, पहले 12 रुपीज़ में देना पड़ा था, अब क्या है कि अगर प्राइस फॉल कर जाएगी तो आपको 10 रुपीज़ में ही वो पैकेट मैगी का मिल जाएगा. ठीक है, सो एंड ही बाइज लेस ऑफ इट, वो क्या करेगा, कम उसको परचेज करेगा, एंड यूज एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर टू बाय द सुपीरियर गुड्स. और उसको अगर वो कम परचेज करेगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा इनकम बचेगी वो क्या करेगा, सुपीरियर गुड्स को परचेज करने में एक्सपेंडिचर करेगा. सो व्हेन देयर प्राइस राइजेस, और जब उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, राइज कर जाएगी, तो परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी. जैसे मैगी का पहले 10 का था, वो 12 का हो जाएगा, तो परचेजिंग पावर क्या हो गई, फॉल कर गई. क्यों, क्योंकि पहले वही पैकेट आपको मैगी का 10 रुपीज़ में मिल रहा था, अब आपको वही पैकेट मैगी खाने के लिए 12 रुपीज़ देना पड़ रहा है. तो आपकी पावर जो है मनी की, वो क्या हो गई, फॉल कर गई ना, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ. तो इसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है. सो द कंज्यूमर बाय मोर ऑफ इट एज ही लिव्स मेनली ऑन इट. फिर कंज्यूमर क्या करेगा, उनको ज़्यादा बाय करेगा. क्यों ज़्यादा बाय करेगा, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर सबसे पहले क्या देखता है, वो अपना, उस केस में अपना घर सबसे पहले नहीं बनवाएगा, वो देखेगा कि उसको खाने, मतलब अपना जो भी मिनिमम उसकी जो नीड है वो उसको फुलफिल हो रहा है
कि नहीं हो रहा है. सो एंड कैन नॉट बाई एज मच ऑफ द सुपीरियर गुड्स, और वो उस कंडीशन पे बहुत ज़्यादा सुपीरियर गुड्स को बाय नहीं करेगा कि खाने को है नहीं वो कार जाके खरीद लेगा, एकदम नहीं. क्योंकि पहले वो अपनी जो भी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं खाने की, उसको क्या करेगा, वो फुलफिल करेगा एज बिफोर. ओके, सो गिफन गुड्स बीइंग कंपैरेटिवली चीपर इन द सब्स्टिट्यूट फॉर द सुपीरियर गुड्स इवन एट इट्स हाई प्राइस. ठीक है, फिर जो भी गिफन गुड्स हैं वो क्या है, कंपैरेटिवली चीपर हो जाएंगे इन दी सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, जैसे जो सुपीरियर गुड्स के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इवन एट दी हाई प्राइस, उसकी भले ही उसकी हाई प्राइस ही क्यों ना हो. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वन इज गिफन गुड्स. नेक्स्ट वन इज इग्नोरेंस. इग्नोरेंस, ठीक है. Ignorance, sometime out of ignorance, a consumer buy more of a commodity when its price actually has gone up and may buy less even if its price have in fact gone down. ठीक है, ये कह रहा है बेसिकली कि ignorance की कभी कभी कंज्यूमर्स क्या है कि ignorance की केस है कि कभी कमोडिटी की प्राइस अगर बहुत ज़्यादा भी होती है तो कंज्यूमर इतना ध्यान न देके इग्नोर करके क्या करते थे, कमोडिटी को प्राइस ज़्यादा भी है तो भी वो क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं. और कभी कभी क्या है, उसकी प्राइस क्या है कि बेसिकली कम भी हो रही है, दे ऑल्सो बाय लेस देन दी दैट ऑफ दी कमोडिटी. तो इनकी वजह से भी क्या हो जाता है कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इनवैलिड हो जाता है. नेक्स्ट वन इज आर्टिकल ऑफ द डिस्टिंक्शन. आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. So Veblen discussed the exception for the first time. ठीक है, वेबलन एक इकोनॉमिक्स थे, वेबलन. ठीक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया कि दीज आर दी स्टेटस सिंबल. देखिए कुछ कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जो स्टेटस सिंबल के लिए होते हैं, कि मतलब उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा भी होती है बट लोग अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उन कमोडिटी को परचेज कर लेते हैं. ठीक है, इसको वेबलन गुड्स भी बोलते हैं. So these are the status symbol goods which are demanded more only when their price is high. जब उसकी प्राइस ज़्यादा होगी तभी वो उन कमोडिटी को, उन गुड्स को क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस सिंबल. की स्टेटस में अगर लोगों को दिखाना है नहीं इतनी कॉस्टली थी तो भी मैंने क्या किया, उसको परचेज किया. ये क्या हो जाता है, इन्हीं को वेबलन गुड्स भी बोलते हैं. और द आर्टिकल ऑफ द डिस्टिंक्शन, सो विच आर डिमांडेड ओनली व्हेन देयर प्राइस हाई. एंड डायमंड्स, कॉस्टली कारपेट, जैसे डायमंड्स हो गया, लोग क्या स्टेटस के लिए पता है कि डायमंड बहुत कॉस्टली, तब भी क्या करते हैं, लोग उसको परचेज करते हैं. डायमंड हो गया, कॉस्टली कारपेट्स जो हो गए, फिर आपके एक्सपेंसिव पेंटिंग्स जो हो गई. जो पेंटिंग होती है वो बस लोगों को क्या अपने घर को डेकोरेट करना, भले उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, डजेंट मैटर, दे परचेज ऑल दोज पेंटिंग्स, कारपेट्स एज वेल एज दी डायमंड्स. ओके, सो मोर डिमांड बिकॉज देयर इज प्राइस इज हाई एंड कैरी प्रेस्टीज वैल्यू, बिकॉज वो अपनी क्या प्रेस्टीज वैल्यू के लिए, अपने स्टेटस सिंबल के लिए उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा भी होती है तो भी क्या करते हैं, वो उन कमोडिटी को परचेज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम कॉस्टली. गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम कॉस्टली. ठीक है, तो इफ प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू द राइज इन फ्यूचर देन पीपल आर मोर बाय इवन द प्राइस ऑफ द दैट कमोडिटी इज वेरी हाई. अभी अगर क्या हो रहा है कि लोग क्या है, अभी कमोडिटी लोगों को ये पता चल गया कि इस कमोडिटी की प्राइस क्या होने वाली है. जो भी कमोडिटी XYZ हम ले रहे हैं, ABC, कुछ भी कमोडिटी, हमें पता है कि इसकी प्राइस क्या है, फ्यूचर में और ज़्यादा हाई होने वाली है. तो भले चाहे जितनी प्राइस, बहुत ज़्यादा प्राइस भी होगी तो भी लोग क्या करते हैं, उन कमोडिटी को परचेज कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ज़्यादा भी है तो भी कमोडिटी की डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है. राइट, तो फिर कह रहा है सिमिलरली प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल. अभी हमें पता है कि अनियन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया. ठीक है, तो उसकी प्राइस क्या है, वो फॉल और भी आगे ज़्यादा करेगी. पीपल में नॉट डिमांड इवन दी करेंट प्राइस आर लो. उसकी प्राइस अभी प्रेजेंट टाइम में भी लो है तो भी वो उसको डिमांड नहीं करेंगे. देखिए यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन फिर से हो गया. इन्वर्स रिलेशन किसमें, अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट हो गया कि प्राइस इंक्रीज भी है तो भी डिमांड ज़्यादा हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है तो भी क्वांटिटी की डिमांड
प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड भी कम हो रही है। तो ये होता है गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम कॉस्टली इन द फ्यूचर। नेक्स्ट वन इज नेसेसिटीज। necessities. Okay, so the law is not applicable in case of basic necessities. For example, जैसे necessities goods होते हैं कि जैसे medicines, और क्या हो गया आपका salt हो गया। क्या आपको salt की प्राइस पहले 8 रुपीज़ का पैकेट मिलता था, अब क्या है वही salt 30 या 40 में मिल रहा है, तो क्या कोई ऐसा करेगा कि नमक खाना छोड़ देगा, बिना सब्जी में बिना नमक के खाएंगे? इम्पॉसिबल है। उस केस में भी लोग क्या करते हैं, नेसेसिटीज गुड्स ऐसे होते हैं जैसे मेडिसिन हैं, ड्रग्स, ये सारे क्या होते हैं, मेडिसिन क्या है, कॉस्टली बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो अफोर्डेबल भी नहीं है तो भी लोग क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं, बिकॉज दीज ऑल आर दी नेसेसिटीज गुड्स, राइट। नेक्स्ट वन इज अदर एक्सेप्शंस। कुछ ऐसे भी हैं जो अदर एक्सेप्शंस में भी आते हैं। अदर एक्सेप्शंस, सो चेंज इन सीजन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, चेंज इन फैशन ट्रेंड्स। देखिए अब जैसे सीजन और क्लाइमेटिक चेंज, अब इसमें हमें पता है कि विंटर में डिमांड किसकी बहुत ज़्यादा होगी, स्वेटर्स की, शॉल्स की, जैसे गीज़र की, हमें पता है कि इनकी डिमांड ज़्यादा होगी। प्राइस इनका चाहे जितना भी हो, एक जैकेट आपको 10,000 की भी मिलेगी, बट आपको नीड है तो आप उसको क्या करोगे, परचेज करोगे। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, एक्सेप्शंस हो जाते हैं। जैसे क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, अब क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट के फेवर में, जैसे सीजन अब रेनी सीजन है, रेनी सीजन में डिमांड रेन कोट की, अम्ब्रेला की इंक्रीज कर जाएगी, वट एवर द प्राइस ऑफ द दैट कमोडिटी विल बी, कि उनकी प्राइस चाहे जितनी भी होगी बट डिमांड क्या हो जाएगी, उन कमोडिटी की इंक्रीज हो जाएगी। फैशन ट्रेंड्स की, लोग फैशन में भी क्या है कि प्राइस बहुत ज़्यादा तो भी डिमांड कर रहे हैं। इमरजेंसीज लाइक ड्रॉट है, कर्फ्यू है, ये सब में भी अगर प्राइस पता है कि कर्फ्यू लगने वाला है या कुछ ऐसा ड्रॉट है, फ्लड, तो ऐसे कंडीशन पे भी प्राइस चाहे जितनी भी होगी, लोग क्या करेंगे, कमोडिटीज़ को परचेज करेंगे। एंड सम ऑफ द अदर एक्सेप्शन वेयर द लॉ मे नॉट होल्ड टू, और भी अदर एक्सेप्शंस है, और भी अदर कंडीशन है जहाँ पे ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, वो एक सही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बस हर एक चीज़ को छोड़ के नहीं चल सकते। हम लोग ने अदर फैक्टर को तो कांस्टेंट कर लिया, इनकम में चेंज नहीं हो रहा है, रिलेटेड गुड्स में चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस उनकी, सीजन एंड द क्लाइमेट, पॉपुलेशन में चेंज नहीं हो रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पॉपुलेशन में चेंज ही ना हो? पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। उस टाइम तो हम लोग ने एक ले लिया कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, दैट इज सेचरस पैरेबस, की कोई भी चीज़ें उधर चेंज नहीं होगी। बट कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसे फैक्टर्स, ऐसे लॉ ऑफ डिमांड क्या होते हैं, वो वैलिड नहीं होते। सो दीज ऑल आर दी सम एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, लाइक गिवन गुड्स, इग्नोरेंस, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, जिसमें हमने वेबलेंट गुड्स लिया कि लोग स्टेटस सिंबल के लिए भी उन कमोडिटीज़ को ज़्यादा लेते हैं। गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम कॉस्टली, फ्यूचर में हमें पता है कि इनकी प्राइस कॉस्टली हो जाएगी। नेसेसिटीज़ गुड्स हैं, लाइक मेडिसिन हो गया, आपका सॉल्ट हो गया, ये सारे नेसेसिटीज़ गुड्स हैं, इनकी प्राइस चाहे जितनी भी होगी बट हम कंजप्शन इनका कम नहीं करेंगे। अदर एक्सेप्शंस हो गया कि चेंज इन सीजन एंड द क्लाइमेट, फैशन ट्रेंड्स एक्सेट्रा। So these all are the some exceptions to the law of demand, right? So the next topic is causes of the negative relation between the price and the quantity demand. Causes कि क्या, किसकी वजह से ये जो negative relation हो रहा है between the price and the quantity demand? Why the demand curve is downward sloping from left to right? क्यों ये जो demand curve है वो downward sloping हो रहा है from left to right? तो क्या ऐसे कॉजेज हैं, किनकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो क्या हो रहा है, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, एज वेल एज कि क्यों निगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है। ओके, तो ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कॉजेज। Causes of negative relation. Causes of negative
relation between price and quantity demanded. और इसको और क्या बोलते हैं? और why does demand curve slope downward? Why does demand curve slope downward from left to right? ठीक है, क्यों ये जो डिमांड कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि क्यों डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? स्लोप करता है. तो द ऑब्वियस आंसर इज बिकॉज ऑफ द निगेटिव रिलेशन. ये तो हमें पता ही चल गया कि इनके बीच में क्या होता है? निगेटिव रिलेशन होता है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. दैट्स व्हाई द डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, सो एक्चुअली द क्वेश्चन आस्क्ड हियर इज आस्किंग व्हाई इज देयर नेगेटिव रिलेशन. यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्यों इनके बीच में निगेटिव रिलेशन होता है बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स लाइक प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड व्हाई डज अ कंज्यूमर बिहेव लाइक दिस. और उस केस में कंज्यूमर ऐसा बिहेव क्यों करता है कि प्राइस इंक्रीज हो रही तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जा रही है. इसका बेसिकली ये तो हमें पता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में, हाँ ठीक है, हमें तो पता ही है कि कोई भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो हम उन कमोडिटी को परचेज क्यों करेंगे. बट ऑब्वियस है कि हम उनको परचेज उनका कम कर देंगे. बट ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? और उस केस में कंज्यूमर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? तो इसका फर्स्ट रीजन है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? DMU भी बोलते हैं ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. जिसमें क्या है कि कोई भी कमोडिटी का हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कंजप्शन स्टार्ट करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी की क्या होती है? डिक्रीज करती है. जिसमें एग्जांपल हम लोगों ने किसका लिया था? याद करिए, पिज्ज़ा का लिया था. और किसका एग्जांपल लिया था? चॉकलेट का लिया था. कि जो फर्स्ट यूनिट होती है, जो फर्स्ट स्लाइस होती है, पिज्ज़ा की ले लिया या बर्गर की ले लिया, वो जो हमें जो सेटिस्फेक्शन देती है, सेकेंड हम उसी की सेकेंड यूनिट कंज्यूम करते हैं तो वो हमको इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं देती है ना. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, जब कंज्यूमर क्या करता है? एक मोर एंड मोर कमोडिटी को कंज्यूम करता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द एडिशनल यूनिट, जो भी मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिल रही है एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने की, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. वो क्या करती जाती है? डिक्रीज करती चली जाती है. जिसमें मैंने एग्जांपल ले लिया था आपका चॉकलेट का ले लिया था, बर्गर का ले लिया था, पिज्ज़ा का ले लिया था. तो जैसे ही हम एक कमोडिटी को कंटिन्यूअसली क्या करते जाओगे? कंज्यूम करते जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा? वो कम होता चला जाएगा. एकदम सही बात है. ठीक है, फिर कह रहा है डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स यूटिलिटी. किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड होती है, वो डिमांड किस पे बेस्ड होती है? उसकी यूटिलिटी पे. यूटिलिटी मीन्स वांट सैटिस्फाइंग पावर. कोई भी कमोडिटी की कितनी पावर है कि वो हमको सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड दी वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ दी कमोडिटी. दैट मीन्स अगर कोई हम कमोडिटी कंज्यूम करें तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी, किसी की डिमांड कमोडिटी की डिपेंड किस पे करती है? उसकी यूटिलिटी पे, कि वो हमको कितना ज़्यादा, उस गुड्स में कितना ज़्यादा पावर है कि वो हमको उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है. ठीक है, सो ही बाइज मोर ओनली इफ ही हैज़ टू पे लेस प्राइस. तो उस केस में कंज्यूमर क्या करेगा? वो ज़्यादा गुड्स को बाय करेगा जब उसकी प्राइस कम होगी, क्योंकि कोई भी गुड्स डिमांड तभी हम करते हैं जो हमको कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है. व्हेन दी सो ही बाइज मोर, वो बाइज तब ज़्यादा करेगा, बाय ज़्यादा करेगा इफ़ ही हैज़ टू पे लेस प्राइस, जब उसको उस कमोडिटी के लिए लेस प्राइस पे करना पड़ेगा. एंड बाई लेस इफ़ ही हैज़ टू पे मोर प्राइस फॉर इट. ठीक है, और वो उस टाइम लेस बाई करेगा कब? जब उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो जब प्राइस ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा? कम गुड्स को लेगा. जब प्राइस कम हो जाएगी तो वो गुड्स को ज़्यादा क्या करेगा? परचेज करेगा. सो बिकॉज प्राइस दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी. पर कंज्यूमर जो भी विल कर रहा है
So there, in that case, the price of that commodity should be equal to the marginal utility of that commodity. In that case, price is equal to the marginal utility. Okay. So till here we have discussed in today's class. We will continue this topic, that is what are the different causes for the negative relation between the price and the quantity demanded, in the next class also. Okay. Thank you.